बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ नंबर। इसमें पहले हम डेफिनीशन की तरफ चलते हैं। डेफिनीशन है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। Definition: let a b belongs to z are two integers with a b are not equal to 0, then any integer m which is divisible by both a and b is called common multiple of ab. Least common multiple of two integers: let ab belongs to z is integer set with ab not equal to 0, then an integer m is called least common multiple LCM of a and b if this m satisfy three conditions: m is greater than 0, a divides m and b divides m. If c belongs to z is any common multiple of a and b, then the least common multiple m divides the common multiple, that is LCM divides CM. If m is least common multiple of a and b, then we write in symbolic form that ab LCM it is equal to m. स्टूडेंट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है जो कि बहुत ही इजी एग्ज़ाम्पल है। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। कॉमन मल्टीपल्स 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24 एंड अप टू सो ऑन, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा है कॉमन मल्टीपल। इन सब में जो सबसे लीस्ट है वो 6 है। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू 6, सो m it is equal to 6. a and b are two integers, their LCM it is equal to m. So the LCM of 2 and 3 it is equal to 6. 6 यहाँ पे जितने भी कॉमन मल्टीपल है सबको डिवाइड कर रहा है। 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है, 6 इसके बाद 24 को एंड अप टू सो ऑन, इन सबको ये डिवाइड कर रहा है। सो द LCM डिवाइड्स द CM। आल्सो ये LCM जो है ये ग्रेटर देन 0 है और 2 और 3 दोनों 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनीशन मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन एन इंटीजर एम इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इफ एम इज ग्रेटर देन 0, a divides m and b divides m. If c belongs to z is any common multiple of ab, then least common multiple divides a common multiple. If m is a common multiple of if m is least common multiple of a and b, then we write in symbolic form that LCM of ab it is equal to m. अब इस पे एक थ्योरम लेते हैं। थ्योरम है हाउ टू फाइंड दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ यूनिक। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स a and b इज़ यूनिक। प्रूफ में सपोज देयर आर टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a b, वन इज़ m1 अदर इज़ m2, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम ये फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स की m1 और m2 दोनों सेम है। To prove the uniqueness of LCM of A and B, we need to show that M1 is equal to M2. Considering M1 as the least common multiple of AB and M2 as a common multiple of AB,
Then we know from third property of the LCM that LCM divides the CM. So M1 divides M2. अब अगर हम इस ऑर्डर को रिवर्स करें, M2 को LCM ले और M1 को CM ले, तो फिर हमारे पास आएगा, now reversing the role of M1 and M2 we get M2 divides M1. From one of theorem we know that if A divides B and B divides A, so from equation 1 and 2, M1 divides M2 and M2 divides M1, so M1 it is equal to plus minus M2. मगर both M1 और M2 जो है ये LCM हमने दिया है, so both are greater than 0 by definition of LCM. So M1 it is equal to plus minus M2 mean M1 is equal to M2. This proves the uniqueness of the LCM. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रहा है कि हम किस तरह दो नंबर्स के लिए, किसी भी टू इंटीजर्स के लिए हम किस तरह मालूम करेंगे LCM को. So if A and B are two integers, then the LCM, the least common multiple of these A and B is AB, least common multiple, it is equal to AB absolute divided by D, where D is the GCD of A and B. तो प्रूफ में यहाँ पे फर्स्ट लेट LCM M it is equal to AB absolute divided by D. हम प्रूव करेंगे कि M जो है ये हमारे पास क्या है, LCM of AB है. Where D is what? D is AB GCD. आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि AB का GCD से हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं. We know when AB has GCD is D, then D divides A and D divides B. When D divides A, it means that A is equal to D T1. T1 belongs to Z by divisibility definition. If D divides B, so B is equal to T2, where T2 belongs to Z, where T1 and T2, these are relatively prime, have a GCD equal to 1. First number M is greater than 0. So as AB absolute is always greater than 0, AB absolute क्योंकि ये absolute value है, ये हमेशा 0 से हमारे पास greater आएगा. D which is a common which is a GCD of AB, and we know by definition of GCD that the GCD is greater than 0. So when the numerator and denominator these are greater than 0, then M is greater than 0. So M satisfies the first condition of the definition of LCM. Now to prove that A divides M and B divides M is equal to AB absolute divided by D. अब इसमें आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो B के जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या है, B के जगह पे है T2. तो यहाँ पे जब आएगा D2 तो D और D एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा M इट इज़ इक्वल टू AN2. यहाँ पे AN2 और प्लस माइनस T2, but we know T2 is integer, so A divides M. So ये हमारे पास by divisibility आया कि by divisibility definition A divides M, where plus minus T2 is an integer. Similarly यही प्रोसेस आपने यहाँ पे रिपीट करना है. M is equal to AB absolute divided by D. A की जगह पे A की वैल्यू ये T1 यहाँ से लेके आप यहाँ पे पुट करें और D के साथ कैंसिल हो जाएगा, आएगा B T1. तो M इट इज़ इक्वल टू B प्लस माइनस T1. T1 हमारे पास इंटीजर है, सो प्लस माइनस T1 दीज आर इंटीजर्स, सो बाय डिविजिबिलिटी B divides M. So second condition of LCM is satisfied that A divides M and
B डिवाइड्स M। अब थर्ड नंबर कंडीशन देखते हैं कि टू प्रूव दैट LCM डिवाइड्स CM कॉमन मल्टीपल, लेट A डिवाइड C एंड B डिवाइड C, ये C हमने लिया है कॉमन मल्टीपल, देन वी प्रूव M डिवाइड्स C दैट LCM डिवाइड्स C। A divides C means C is equal to A T3, where T3 belongs to Z by divisibility definition। तो हम इस तरह भी ले सकते हैं कि T3 it is equal to C by A। इसी तरह B divides C, तो C it is equal to by divisibility B T4, where T4 belongs to Z। हम इस तरह भी ले सकते हैं कि आप T4 को इस साइड पे और इक्वेशन में B को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, सो T4 इट इज़ इक्वल टू C बाई B। अब यहाँ पे AB का GCD जो है वो D है, AB GCD इट इज़ इक्वल टू D। सो देयर एग्जिस्ट XY बिलोंग्स टू द इंटीजर्स सच दैट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन D इज़ इक्वल टू AX प्लस BY। कंसिडर हमने यहाँ से शुरू किया कि C डिवाइडेड बाई M, यह हमने कंसिडर किया। थ्रू ये करेंगे कि M डिवाइड C, सो C बाई M के जगह पे M की वैल्यू AB एब्सोल्यूट डिवाइड बाई D, सो C यहाँ पे CD डिवाइड बाई AB एब्सोल्यूट, ये D आप ऊपर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करें, ये नीचे डिवाइड है तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो CD बाई AB एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू C एंड 2 D के जगह पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन AX प्लस BY, सो यहाँ पे AX प्लस BY डिवाइड बाई प्लस माइनस AB। अब CA डिवाइड बाई प्लस माइनस AB X प्लस BY प्लस माइनस ABC डिवाइड, डिनोमिनेटर आप अलग अलग करें तो यहाँ पे जब आप अलग करते हैं तो A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब आप अलग करते हैं तो B कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा प्लस माइनस C बाई B इंटू एक्स प्लस माइनस C बाई A इंटू वाई। अब इसमें आप ये जो है हमारे पास इसके जगह पे C बाई A की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, C बाई A की वैल्यू है T3 और C बाई B की वैल्यू है T4। तो आप यहाँ पे X के साथ आप T3 और यहाँ पे आप T4 को पुट करें तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस T3 X प्लस ये प्लस माइनस T4 X प्लस माइनस T3 Y विच इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। तो यहाँ पे जितने भी X और Y है, X Y या T3 T4 ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एज वेल एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स इज एन इंटीजर, सपोज दिस वन इज एन इंटीजर T, सो हमारे पास आएगा यहाँ पे C बाई M इट इज़ इक्वल टू T। ये राइट हैंड साइड जो है ये हमने T कंसिडर किया है यहाँ पे, सो C इट इज़ इक्वल टू MT by divisibility definition M divide C which is the required proof। so हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है। so हमारे पास 3 कंडीशन ऑफ द डेफिनीशन दैट इज फर्स्ट M is greater than 0, second A divides M and B divides M, और third M divides common multiple by definition of LCM mean AB has LCM it is equal to M। तो हमारे पास यहाँ पे AB का जो LCM आ रहा है इट इज़ इक्वल टू M, और M हमने कंसिडर किया है कि M इट इज़ इक्वल टू AB एब्सोल्यूट डिवाइड बाई D। सो आप M की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड प्रूफ दैट AB हैज़ LCM इट इज़ इक्वल टू AB डिवाइड बाई D। अब यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स और LCM फाइंड करेंगे। तो इस पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, एग्जांपल से पहले एक कॉरोलरी लेते हैं, एक रिज़ल्ट अहाज करते हैं। इफ़ AB आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स सच दैट
AB has GCD is 1, that is A and B are relatively prime, then AB LCM it is equal to AB एब्सोल्यूट डिवाइड बाई डी की जगह पे यहाँ पे है 1, सो हमारे पास आएगा अगर A और B दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर लेना है एब्सोल्यूट में, और वो हमारे पास एलसीएम होगा। जिस तरह के मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि स्टूडेंट्स 2 और 3 हो यहाँ पे, तो 2 और 3 हमारे पास इन दोनों का जीसीडी जो है 1 है, तो ऐसे हालत में आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है 6। AB has GCD is 1, to prove that AB absolute is AB LCM it is equal to AB absolute, we know from the above theorem that AB LCM it is equal to AB absolute divided by AB GCD. GCD it is equal to 1, so it is equal to AB as AB GCD is 1. So in this case that LCM of AB it is equal to AB absolute. अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ यहाँ पे 273 और 81, इन दोनों का आप एलसीएम फाइंड करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ 273 एंड 81, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम से पहले आपने जीसीडी निकालना है। AB GCD प्रोसेस हमारे पास इस तरह होगा कि 273 ये 81 से ग्रेटर है, इसलिए 273 को आप 81 से डिवाइड करें। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 से ये हो जाता है, आएगा यहाँ पे 30। अब 81 को लेके आपने 30 से डिवाइड करना है तो 2 से हो जाता है 60, तो यहाँ पे आएगा 21। अब 30 को आपने 21 से डिवाइड करना है तो 1 से हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 9। अब 21 को लेके आप 9 से डिवाइड करें तो 2 से 18 आएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब 9 को लेके आप 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है रिमाइंडर 0। अब आपने इसे इक्वल्स फॉर्म में लिखना है, वो है 273 विच इज़ ए 273, और 81 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 30 ले, ये रिमाइंडर है। अब 81 को ले कि इसमें आपके पास 30 आए, तो 30 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 60 प्लस 21 इट इज़ इक्वल टू 81। अब आपने यहाँ पे लेना है 30 को कि इसमें 21 आए तो प्लस 9 यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है। अब आपने लेना है यहाँ पे 21 को कि इसमें 9 आए तो 9 इंटू 2 इज़ 18 प्लस 3 ये 21। अब आपने लेना है 9 कि इसमें 3 आए तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 0, यहाँ पे 0 आ रहा है रिमाइंडर, इससे पहले जो होगा दैट इज़ कॉल्ड जीसीडी। सो 273 एंड 81 हैज़ जीसीडी इज़ 3। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है। 273 एंड 81 एलसीएम इट इज़ इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड बाई द जीसीडी ऑफ 273 एंड 81 विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये हमें पता है कि 3 81 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 273 को भी डिवाइड करता है। सो आप 3 से 81 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 27। अब 27 और 273 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम आएगा 7371। ये एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आपने एलसीएम को फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम, यहाँ पे आपको कुछ एलसीएम नंबर दी गए हैं 49 एंड 105। पहले आपने 105 और 49 में से 105 को लेके 49 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास आएगा 7। 105 मल्टीप्लाई बाई 2 49 प्लस 7, और 49 के इसमें 7 है, 7 7 ज़ार 49। सो 7 इज़ द जीसीडी। अब 49 और 105 का एलसीएम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जीसीडी मीन 7 से जब आप डिवाइड करते हैं तो 735 हमारे पास एलसीएम आता है। इसी तरह अगर कोई एक नंबर नेगेटिव हो -36 और 321, तो नेगेटिव नंबर आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ इससे डिवाइड करना है 321 को 36 से। और फिर इसी प्रोसेस में आपके पास जो एलसीएम आएगा दैट इज़ 3, जो जीसीडी आएगा सॉरी वो दैट इज़ 3। सो डी इट इज़ इक्वल टू 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इसे 3 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 3552 इज़ द आंसर। इसी तरह यहाँ पर भी
आपको दो नंबर दी गई हैं 420 531। इसमें 531 ज़्यादा है 420 से जब आप डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपके पास जो GCD आता है दैट इज़ 3 बाय प्रोसेस। सो इन दोनों का GCD 3। अब LCM बहुत इजी है, A एंड B इट इज़ इक्वल टू AB एब्सोल्यूट डिवाइड बाय D, और D की जगह पे यहाँ पे क्या है 3। सो यहाँ पे आप 3 को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास LCM आएगा 74,340 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ तुलबा की क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कहीं पर मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।